Good morning, 8th class. I am Anju ma'am. Today we are here to continue our new chapter, the National Movement 2, chapter number 14 of your book. Today we continue the chapter where we left in our previous classes, and the topic is page number 120, Jallianwala Bagh Massacre. Beta, all of you know about that. Jallianwala massacre was this bad incident was happened on 10 April 1919. 1919. Two Congress leaders. The name of the two Congress leaders are Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. What? Dr. Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal were arrested in Punjab. And what was the reason that why they are arrested in Punjab? On 13th April 1919, a peaceful meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar. Jallianwala Bagh is situated at Amritsar in Punjab, to protest against the arrest of these leaders. बेटा हमने पढ़ा था we studied about the Rolt Act 1919 in our previous classes. What was the Rolt Act? Rolt Act is for the government give powers, unlimited powers, British government. Rolt Act gives the powers to British government, unlimited powers to suppress the violence created by Indians in a very bad way. Rolt Act हक देता था ब्रिटिशर्स को suppress the violence of Indians in a whatever you want to do with Indians करिए, हाँ, पर आप उसको इंडियन के वायलेंस को सप्रेस कीजिए, दबा दीजिए. तो इसी चक्कर में जब रोल्ट एक्ट आया, व्हेन द रोल्ट एक्ट वाज पास्ड, मैनी लीडर्स वर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. व्हाट वाज लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज पास्ड बाय मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919 ऑल्सो, है ना. फर्स्ट 1909 पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, देन मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919 by replaced by the Central Legislative Council, replaced by the two houses, Imperial Legislative and Council of State. देखो बट हम पीछे का भी रिवाइज करते जा रहे हैं ना, तो इसलिए ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि हम पीछे से आगे को क्या, हाउ वी कनेक्ट द पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट मूवमेंट्स विद द प्रेजेंट मूवमेंट्स. हाँ, तो इट वॉज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व. जब हमने ये देखा कि भाई ना रोल्ट एक्ट पास हो गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐसे से ना ये सप्रेस कर रहे हैं लोगों के वायलेंस को, लोगों के इंडियंस के मूवमेंट को, तो कुछ लीडर्स थे. मैनी ऑफ द लीडर्स नेम आर सम ऑफ द नेम्स आर मजरूल हक एंड मदन मोहन मालवीय. हाँ, दे रिजाइंड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अपोजिंग दैट रोल्ट एक्ट. हाँ, एंड Mahatma Gandhi also started a satyagraha. Mahatma Gandhi also started a satyagraha against this Rolt Act. Repressive measure of this act to mobilize the people on a large scale. It was decided to observe 6 April 1919 as Satyagraha Day. Mahatma Gandhi started a movement against the Rolt Act, started on 6th April 1919 as a name of Satyagraha Day. Satyagraha Day. Very good. अब सत्याग्रह डे आ गया. जलियांवाला मसाकरे 6 अप्रैल सत्याग्रह डे स्टार्टेड बाय द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी. बट जलियांवाला बाग मसाकर was happened, the bad incident was happened in 13th अप्रैल 1919. 6 अप्रैल के बाद ही आप कह लीजिए, आप 7 दिन बाद, आफ्टर ए वीक आफ्टर, हम जलियांवाला मसाकर वॉज हैपन्ड. क्या था ये? वट वॉज दैट जलियांवाला मसाकर? हाँ, ये सारा था क्या? ए पीसफुल मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला मसाकर इन अमृतसर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी अरेस्ट ऑफ दीज लीडर्स. हाँ, जो रोल्ट एक्ट को अपोज कर रहे थे, उन लीडर्स के अगेंस्ट उनको अरेस्ट कर लिया गया है थ्रू दिस रोल्ट एक्ट. तो अनलिमिटेड पावर्स आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो उसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग में, अमृतसर में प्रोटेस्ट चल रहा था. हाँ, while the meeting was going on peacefully, General Dyer, the name of the British government officer, that was the name of General Dyer. What was the name? General Dyer entered the park with his troops. He blocked the exits and the park and ordered the troops to open fire. The firing continued for 10 minutes and hundreds of people were killed and many wounded. बेटा इसमें बहुत सारे लोग, हंड्रेड से थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर किल्ड, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर किल्ड, मैनी सिक्स लेडीज, मैनी 6 kids were killed in this movement.
और ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बेकार सबसे बुरा मसाकर कहा जाता है। दैट वाज कॉल्ड जलियांवाला बाग मसाकर। ये एक इंडिया की हिस्ट्री में कह सकते हैं धब्बा बन गया था, एक स्टेन बन गया था कि ऐसे ऐसे पीसफुली मूवमेंट स्टार्ट किया जा रहा था और उसको इस तरह से सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन दिस पॉलिसी इन दिस मूवमेंट। And General Dyer was that name who started the all फायर ऑन दैट है ना पीसफुली जनता पर है ना सारा फायर कर देता है और इस ही ट्राई टू सप्रेस दिस पीसफुल मीटिंग इन अ वेरी बैड वे। दैट वाज कॉल्ड जलियांवाला बाग मसाकर। नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट इज ऑल्सो वॉज नेम खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन 1919। मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में 1919 जब हमारे इंडिया में जलियांवाला मसाकर हो रहा था, जब वहाँ पर टर्की में इंडो इस्लामिक कंट्रीज में क्या हो रहा था बेटा, खिलाफत मूवमेंट। क्या होता है बेटा, खिलाफत मूवमेंट। द मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया हैड द सुल्तान ऑफ टर्की इन ग्रेट एस्टीम। दे कंसिडर हिम एज खलीफा। इसमें क्या होता है मैं आपको शॉर्टली समझाती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या होता है बच्चे कि है ना टर्की के जो एक सुल्तान थे, खलीफा थे, उनकी काफ़ी रुतबा था सारे इंडो इस्लामिक कंट्रीज़ में। टर्की उसमें ब्रिटिश तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ब्रिटिश फोर्ट अगेंस्ट टर्की के खिलाफ लड़ा। टर्की क्या होता है बेटा, टर्की से डोरवे ऑफ यूरोप टू इंडो इस्लामिक कंट्रीज या एशियन कंट्रीज और यूरोप के बीच का एक डोरवे होता है, दैट इज़ टर्की बीच में आता है बिल्कुल। हाँ, टर्की से ही हम यूरोप में एंटर कर पाते हैं। The victorious British imposed humiliating terms on Turkey and the Allies divided the empire of Turkey among themselves. तो ब्रिटिश जीत जाते हैं, ब्रिटिश won upon